Hello students, I hope all of you are in good health. So today we are going to start our new chapter, that is organization and classification of data. Okay, since our last class we have seen the collection of data. What we have seen different methods for collecting data, and we have also seen there are mainly two types of data, that is primary data and secondary data. Okay, so we have also seen how primary data are collected and how secondary data are collected and what are their sources from where this data can be collected. So today in this chapter we will look how the data is organized or classified. Okay, so the first thing we are going to look is classification of data, the meaning of classification of data. Okay, so classification is the process of arranging data into different groups or classes on the basis of some common characteristics. That means organizing the data in a systematic manner. Okay, suppose there are some common characteristics. Suppose we are collecting some data from a particular school, then we can arrange them into age groups. Okay, so arranging in different age group will be in systematic manner. So this in this way how we can classify our data. So the collected data are always in an unorganized form, which are called raw data. Since in our last class we have seen that while collecting the data for the first time, they are in raw form and they are not in organized form. Okay, so raw data are crude from and thus are highly disorganized. That means they are in crude form. We already, for example, we can say that before petroleum, the before extracting petroleum, the oil is crude oil. Since there are mixture of many things, petroleum is mixed, crude oil is mixed of many things. After separating this crude oil, then we get petrol, diesel. So in the same way, data must be classified or organized in different groups or classes based on some common characteristics. Thus, from this definition, we can know that collected data are divided into different groups. So, the data which are collected must be divided into different groups. Okay. Next is homogeneous data are kept in or classified in the same group. That means of same characteristics, uniformity. अगर कुछ डाटा अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे सेम एज ग्रुप बिलोंग कर रहे हैं, सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उसको एक मतलब एक ग्रुप पे रख सकते हैं. नेक्स्ट है डाटा आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजरमेंट्स. सो डाटा हम क्वालिटी, सपोज टू चेक द क्वालिटी कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना ट्रूथफुल है, वैसे भी कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कितना मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हो सकते हैं. सो based on characteristics, measurement and attributes, data can be classified. Okay, so next we are going to look is objectives of classification. So the chief objectives of classification are to present data in simple form. Why data is classified? In order to present the data in simple form. Okay, so हमने पहले ही देखा कि जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर पे रहता है, मतलब बहुत सारे, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब हम लोग क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से हम लोग उसको
प्यूरिफाई करते करते उसके बाद हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक उसी तरह डाटा बहुत अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है, उसको हमें फिर से मतलब अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मतलब पर्टिकुलर एक एक मतलब थीम के ऊपर वो लोग अरेंज में रहेंगे। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तभी जाके हम लोग मतलब समझने में आसानी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सो जब हम क्लासिफाई करेंगे जब हम क्लासिफाई करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा चीज़ सिमिलर है और कौन सा चीज़ मतलब अलग अलग है। ठीक है। सो जब क्लासिफाई करेंगे तब हमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मतलब उस डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पता चलेगा। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगर हम लोग अ, जब डाटा को क्लासिफाई करेंगे तब जाके वो डाटा कंपेरेबल होता है। ठीक है। सपोज मैंने बोकाजान एरिया के बिलो 18 इयर्स एज के सब बच्चों का मैंने मतलब आइदर दे आर गोइंग टू स्कूल और नॉट उनके बारे में मैंने एक डाटा कलेक्ट किया। ठीक है। और मैंने उसके बाद गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के वैसे बिलो 18 ईयर एज के मतलब डाटा कलेक्ट किया। फिर जब क्योंकि अभी मैं डिस्टिंक्टली बोल रहा हूँ कि बिलो 18 इयर्स मतलब 18 इयर्स के नीचे के बच्चों के ही डाटा मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है। तब अगर मैं मतलब इस बोकाजन एरिया के सभी बच्चों का अगर मैं डाटा कलेक्ट करते कि स्कूल जाता है कि नहीं, तो वहाँ पर एज ग्रुप कुछ नहीं होता, तब मैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के बिलो 18 इयर्स एज के बच्चों के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकता था। ठीक है। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जब हम देखो, अगर तुम्हारा घर पे या रूम पे बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरा हुआ होगा तो वो अच्छा दिखेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमें उस सेम तरह डाटा अगर ऐसे मतलब कलेक्ट करके जैसे तैसे जी मतलब इधर उधर का डाटा हम लोग कलेक्ट करके रखा है पर अच्छा से अरेंज नहीं किया है तो वो हमें क्या अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा, इफेक्टिव भी नहीं होगा। क्योंकि वो डाटा देख के हमें मतलब मन भर जाएगा कि ये डाटा बकवास का है। ठीक उसी तरह अगर किसी के रूम पे अगर घुस के देखा कि इतना सारा गंदा मतलब सामान इधर उधर है तो हमें क्या फील आएगा, अरे इसके रूम पे मतलब बहुत मतलब गंदा है, हमें घुसने का मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो और भी एग्जांपल हो सकता है कि अगर हम लोग एनवायरनमेंट में मतलब बहुत सारे गंदगी करेंगे तो क्या होगा, हम लोग एनवायरनमेंट हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और उस एनवायरनमेंट से हमें मतलब फ्रेशनेस या मन को बहलाने वाला कुछ मतलब नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन हमें क्या क्या करता है, डाटा इन सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। फिर तुम्हारा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसिमिलरिटीज मतलब डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। उसके बाद तुम्हारा कंपैरिजन मतलब अ, दो मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्लासिफाई करने से डाटा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। एक गुड क्लासिफिकेशन, ठीक है, गुड क्लासिफिकेशन होने के लिए कुछ क्वालिटी होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ कोई क्लासिफिकेशन गुड नहीं हो जाएगा। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है। द फर्स्ट वन इज सुइटेबिलिटी। सुइटेबिलिटी का मतलब है कि मतलब जो पर्पस के लिए हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया है, सो उस पर्पस के लिए हम लोग डाटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो सुइटेबल होगा। अगर मैंने कुछ पर मतलब कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव से उस डाटा को कलेक्ट किया है पर वो डाटा अनऑर्गेनाइज मैनर पे है,
मतलब सपोज मुझे बिलो 18 ईयर्स के एज के बच्चों का डाटा चाहिए था, पर मैंने पूरा पॉपुलेशन तुम्हारा पूरा बोकाजन के स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया है। तब क्या होगा, मुझे बिलो 18 ईयर के एज के मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बिलो उन सब डाटा से मुझे पहले बिलो 18 ईयर्स के बच्चों का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो लिस्ट नहीं बनाऊंगा और उस कंप्लीट डाटा से अगर निकालने जाऊंगा कि बिलो 18, तब मेरा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मुझे बहुत सारे हैं, सपोज 1000 बच्चे हैं, मुझे एक बच्चे के, सपोज फर्स्ट बच्चा 18 ईयर्स का निकला, फिर नेक्स्ट बच्चा तुम्हारा 20, 21, 22 ऐसे के मतलब निकल रहा है, तब मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। सो फॉर एग्जांपल, in order to know about the economic position of the people of Delhi and Chennai, the basis of classification should be income instead of the basis such as age, height, weight, etc. ठीक है, अभी मुझे इनकम जानना है दिल्ली और चेन्नई के लोगों के बीच में। तो उनका मतलब पैरामीटर, जो मतलब जो तुम्हारा पैरामीटर होना चाहिए या फिर बेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इनकम होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनकम के हिसाब से हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं एज या हाइट वेट ये सब करूंगा तो मुझे वो उनके मतलब चेन्नई और दिल्ली के लोगों का इकोनॉमिक का हालत मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। देयर मस्ट बी होमोजेनिटी अमंग ऑल आइटम्स ऑफ ए क्लास ग्रुप, मतलब जितना भी हम लोग भाग भाग करने वाला है सब में मतलब होमोजेनिटी होना चाहिए, ठीक है। सब ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टर होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि एक ग्रुप पे दूसरा कैरेक्टर भी है, मतलब सब में सिमिलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा वाइड। वाइड मतलब तुम्हारा द क्लासिफिकेशन शुड बी वाइड सो एज टू इंक्लूड ऑल द वैल्यूज इन वन ग्रुप और द अदर। मतलब तुम्हारा क्या है वो क्लासिफिकेशन, मतलब बड़ा एरिया तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ताकि तुम जितने भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, नया नया कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, सबको मतलब एक एक भाग में तुम डिवाइड कर सको। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। So a good classification should also possess the quality of simplicity। मतलब सिंपल फॉर्म में हमें, जब भी हम क्लासिफाई करेंगे तो हम सिंपल सिंपल फॉर्म में, जैसे एज ग्रुप पे किया, फिर हाइट पे किया, फिर वेट पे किया, फिर इनकम पे किया, ऐसे मतलब सिंपल सिंपल। इनकम बोलने से हमें पता चलता है कि जो अर्निंग करता है, वो- जो अर्निंग करके उसको पैसा मिलता है वही उसका इनकम है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लेना है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। A good classification must also possess the principle of flexibility so that different class groups can be changed according to requirements। Suppose मतलब जितना भी अरेंजमेंट हम लोग अरेंजमेंट या क्लासिफाई करने वाले हैं, सब तुम्हारा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मुझे मतलब मैंने अभी सबको एक एक भाग में, एज में भाग किया है, हाइट पे भाग किया, वेट पे भाग किया, इनकम पे भाग किया है, कास्ट पे भाग किया है, ठीक है। तो मुझे मतलब ये सब फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मुझे जब जिसका ज़रूरत होगा मैं उसको यूज़ करने के लिए मतलब सक्षम होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of a good classification। The first one is it must be suitability, or it must be suitable. It must possess the characteristics of homogeneity, that is uniformity. Then the classification area must be large or wide. And then the classification should be in simple, not in complex. And the fifth characteristics, it must be flexible, not rigid, मतलब एक फिक्स नहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। So the next topic that we are going to look is methods of classification. Okay, so data can be classified
on the following basis in accordance with their characteristics। मतलब कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने पहले डेफिनेशन पे तुम्हें बोल दिया है। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अभी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जियोग्राफिकल नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि ये बाउंड्री होगा, ये एरिया होगा। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन geographical or locational differences between the various items that are classified area wise such as state district etc। मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस या फिर लोकेशन। लोकेशन में तुम्हारा एरिया वाइज हो सकता है। हम लोग पहले एक स्टेट का सब डिवीजन का मतलब डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर विलेज का कर सकते हैं, स्टेट का कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का, कंट्री का। ठीक है। तो सिमिलरली वैसे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया में बी प्रेजेंटेड स्टेट वाइज। ठीक है। जब मतलब हम लोग क्या, कौन सा स्टेट कितना मतलब फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, वो हम लोग प्रेजेंट करने की, वो हम लोग जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हो गया हरियाणा तुम्हारा, जैसे हरियाणा कितना प्रोड्यूस कर रहा है, पंजाब कितना कर रहा है, आसाम कितना कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एक आसाम पे बर्थ रेट कितना है, वेस्ट बंगाल पे बर्थ रेट कितना है, शिलोंग पे बर्थ रेट कितना है। ठीक है। ऐसे मतलब हम लोग एक एक लोकेशन वाइज हम लोग मतलब डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज बोकाजान पे कितना तुम्हारा एडुकेटेड लोग हैं, गोलाघाट पे कितना एडुकेटेड लोग हैं, जोरहाट पे कितना एडुकेटेड लोग हैं। ठीक। ऐसे। द नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो क्रोनोलॉजी मतलब क्या है, when data are classified on the basis of time such as year, months, weeks, this type of classification is known as chronological classification। मतलब जब भी कोई डाटा तुम्हारा ईयर वाइज मतलब ईयर वाइज क्लासिफाई हो रहा है, या मंथ वाइज या वीक वाइज या डे वाइज, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग पॉपुलेशन के डाटा प्रेजेंट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट हम लोग बोलते हैं कि 1921 पे पॉपुलेशन 25.1 करोड़ था, फिर 61 पे पॉपुलेशन 43.9 करोड़ था, 2000 2001 पे 102.7 करोड़ था। ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट टाइम पीरियड के बात करते हैं इस पे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मेरा फर्स्ट चैप्टर पे मैंने बोला था कि स्टैटिस्टिक होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वालिटेटिव नहीं होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी मतलब मीनिंग बोल के रखा था। सो क्या है डेफिनेशन, when the data are classified according to qualities or attributes of data such as honesty, beauty, intelligence, etc., then the classification is referred as qualitative classification। ठीक है। मतलब वो कितना तक पढ़ा है, या फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है। सपोज हम लोग बोकाजान एरिया के पीपल के तुम्हारा ऑक्यूपेशन ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है। और रिलीजन, वो तुम्हारा क्या है, रिलीजन और ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है। फार्मिंग हो सकता है, या फिर ऑफिस पे जॉब हो सकता है। हम लोग अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं कि कितना अर्न कर रहा है। ठीक है। अर्न जब पूछेंगे तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। पर जब हम लोग पूछ रहे हैं कि तो ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब क्या है, क्वाल मतलब वो सिर्फ नेम ही होगा। तुम्हारा फार्मिंग हो सकता है, या फिर टीचर हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। ठीक है। तो उसी तरह तुम्हारा इंटेलिजेंस भी हो सकता है, वेरी इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट। ब्यूटी हो सकता है, वेरी ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, ऐसे मतलब। ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन पे तुम्हारा लेस, मोर, मच, ये सब वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है।
सो क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, मतलब करना पड़ेगा। If the data are classified on the basis of phenomenon which is capable of quantitative measurement, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मतलब जो हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, अगर उस हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है तो वो उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एज हो सकता है, एज को हम क्या बोलते हैं, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 मीटर, 5.2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, ऐसे एज को हम लोग मतलब तुम्हारा न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाइट को कर सकते हैं, और सॉरी एज, एज को हम लोग के मतलब कितना एज हुआ है, 40 एज, 50 एज, 25 एज, ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉफिट्स को, कितना प्रॉफिट हुआ, 45% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मतलब 45, तुम्हारा 45 क्या है, न्यूमेरिकल टर्म है। सो जो चीज़ों को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग, अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर उसको मतलब क्लासिफाई करेंगे तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर क्वालिटी या फिर तुम्हारे एट्रीब्यूट को अगर मतलब क्लासिफाई करते हैं तो वो क्वालिटेटिव होता है। अगर किसी टाइम, सॉरी टाइम दैट इज ईयर मंथ डे के हिसाब से अगर उसको क्लासिफाई करते हैं तो वो हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल। और तुम्हारा जोग्राफिकल है कि लोकेशन या एरिया वाइज कुछ क्लासिफाई करते हैं तो वो हो जाएगा जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।